Well, we've got Rishabh Pant. Rishabh, of course, Graham Swan alongside. Commiserations, tough one. You thought the total wasn't big enough, maybe another 20-odd runs batting first? See, definitely we knew we were like 20 run short because in Lucknow, toss played a huge part because whosoever is bowling first, they get a lot of help from the wicket, and like we just had to stay back, stay in the match for longer period of time, and we just couldn't get it away. Well, did the conditions get a little better to bat in the second half? It always happens in Lucknow. In second inning, the wickets becomes better and better to bat on. But that's how game goes. We can't be complaining that. Yes, toss is playing a huge part here. But as a team, we are not looking for excuses. Just looking to learn from it. Rishabh, just a thought about that impact player substitute. Last couple of games, you got Ayush Badoni. Is it basically to keep Mayank also in the game? See, definitely that is one idea why we are impacting Ayush, to get Mayank some game time, just trying to find ways to get him early in the season because it's already halfway around and he came from NCA now, so just trying to fit him in. Well, you came down the order to bat as well. What's the thought process behind that? Idea was to capitalize because we sent someone to capitalize on a wicket like that, but after that Miller came in and we just really got stuck in the wicket. But eventually these are the things we got to figure out and try to find our best combination going forward. Right, obviously won't keep you long, but next couple of games are away from home. Your thoughts about that? So, I haven't thought about anything as of now, just finished the match. We're gonna regroup, realign and refocus again, and just gonna be playing the next match from the fresh start. Well, you've got a few days before your next game, so all the very best for the rest of the season. Go well. Thank you so much. This evening, Akshar Patel, captain of the Delhi Capitals. Like to hear from him, his thoughts, not only in the bowling department, in the batting department as well. बीमिंग स्माइल अक्षर, क्या बात है, क्या बढ़िया तरीके से मैच खेला. ये स्माइल सब कुछ बता गई अक्षर. अब आप बताओ शुरू से लेकर एंड तक कैसे रहा? नहीं, ऑब्वियसली बहुत ऊपर नीचे रहा. थोड़ा पावर प्ले जिस तरह से हमारा स्टार्ट हुआ कि 6 ओवर में मुझे लगता था विकेट नहीं गिरा, लेकिन हम कंट्रोल में थे. 85 रन गए थे और उसके बाद मैं यही बात कर रहा था कि गेम दूर नहीं गया है, हम लड़ते रहेंगे, कुछ भी हो सकता है. 1-2 विकेट गिरे, हम वापस गेम में आ सकते हैं. तो वही बात हो रही थी और जिस तरह से 1-2 विकेट गिरे उसके बाद आई थिंक 160, अगर पावर प्ले में विकेट नहीं गिरा उसके बाद 160 में रोकना, तो आई थिंक सब बॉलर ने बहुत ही अच्छा एफर्ट किया और अच्छी बॉलिंग डाली. वो एक बॉलर का नाम अक्षर पटेल भी है जिन्होंने 4 ओवर लगातार डाले और आज बोला मैं कप्तान हूँ, मैं सेकंड ओवर से ही शुरू करूँगा, पहले मैं ही डाल लेता हूँ, और 4 इकट्ठे. अभी तक तो ये देखने को नहीं मिला, लेकिन इतनी बढ़िया बॉलिंग. अभी तक ये अच्छा बॉलर क्यों छुपा के रखा था? नहीं, एक्चुअली फर्स्ट ओवर से आ गया था क्योंकि कप्तान था. मैं चेक कर रही थी कि आपको पता है कि नहीं. नहीं यार, नहीं छुपा के नहीं रखा था. आई थिंक थोड़ा इंजरी का इश्यू था और उंगली में थोड़ा मैं अपने आप को टाइम दे रहा था, बचा के रख रहा था, क्योंकि अगर थोड़ी और जल्दी कर देता तो आई थिंक ऐसा था कि पीछे वाले मैच भी मिस कर सकता था. तो मैं यही सोच रहा था कि अगर ज़रूरत है तो मैं डालूंगा, बट अभी थोड़ा ठीक हो गया है, तो इसलिए मैं आया. जब बॉल अच्छा गिर रहा था तो मैंने बोला क्यों नहीं, पावर प्ले में अच्छा बॉल अटैक भी नहीं कर पा रहे थे मुझे और रन भी नहीं जा रहे थे, तो मैंने बोला लगातार 4 ओवर डालना ईजी रहता है, क्योंकि जब आप लगता है कि रिदम में हो और सब कुछ है, तो इसलिए वो बॉलर अभी तक छुपा के रखा था, लेकिन आज आ गया सामने. मुझे तो ऐसा भी लग रहा था कि कहीं ना कहीं बाकी स्पिनर्स को थोड़ा सा आप शील्ड कर रहे थे, क्योंकि सीम बॉलर्स आपकी स्ट्रेंथ रही है. मुकेश ने अच्छी गेंदबाजी करी, बाकी जब भी आप रोटेट करने का सोच रहे थे, आज शामिरा को भी अंदर लेकर आए, तो जो आपका प्लान था ऐसा लगा कि बहुत अच्छा प्लान इम्प्लीमेंट हुआ. आपको कैसा लगा? या ऑब्वियसली मैं थोड़ा मैचअप भी देख रहा था और वही देख रहा था कि क्या विकेट बिहेव कर रहा है. उसके बाद मैं स्पिनर को भी लाया, लेकिन छोटी साइड थी, तो मैं सोच रहा था कि इस तरफ से फास्ट बॉलर ही बेहतर रहेंगे. जब उनका निकोलस पूरन आया तब मैंने सोचा कि लास्ट टाइम स्टार्क आउट हुआ, तो थोड़ा ये मेंटली भी थोड़ा खेलना होता है. तो ये सब के मैं देख के ही मैं अपने आप में मुझे लग रहा था कि इस विकेट के लिए सामने वाले बैट्समैन के लिए कौन सा बॉलर कि अच्छा डाल सकता है. तो इस तरह से मैं रोटेट कर रहा था और क्रेडिट गोज टू देम कि जब आए मुझे जो चाहिए था
था वो दिया, तो आई थिंक उससे बेहतर कुछ हो ही नहीं सकता कप्तान के लिए। फिर ये एक नया कप्तान है, युवा कप्तान है जो बैटिंग करने के लिए भी आता है और वो कहता है मैं नंबर 4 पे खेलूँगा, केएल सामने खेल रहे हैं, कोई बात नहीं, पूरा खेलो। तो ये बैटिंग का जो अवतार है नंबर 4 आप कितना पसंद कर रहे हो? अभी तो जब अच्छा होता है तो अच्छा ही लगता है, यू नो कि, बट या ऐसा नहीं है कि मैं जब आता हूँ सिचुएशन के हिसाब से बैटिंग करता हूँ। मुझे लगता है कि मैं जब मेरी स्ट्रेंथ है, अगर मेरा बॉलर आएगा तो अगर पहली बॉल होगी तो भी मैं मारूंगा, और यही होना चाहिए कि आप यू नो डबल माइंड जब रहते हो तो आपको ऐसा होता है कि यार कभी लगता नहीं है। बट मैं क्लियर, अपने थॉट में क्लियर हूँ। मैं जब आता हूँ मुझे पता है कि मैं अगर 4, 5 या 6 कभी भी मैं अपने आप को प्रमोट करता हूँ तो मैं सामने वाले बॉलर सोच के प्रमोट करता हूँ कि उनके कितनी ओवर बाकी है और क्या कर सकते हैं, तो इस हिसाब से मैं अपने आप को प्रमोट करता हूँ। और या मैं जब भी सोचता हूँ मैं लाइन में आके अपने बॉलर को टारगेट करता हूँ। अभी तक सक्सेस मिल रहा है, सो आई थिंक होप सो ये ऐसा ही कंटिन्यू रहे। आई एम श्योर रहेगा। पर अगर आपसे पूछें, क्योंकि ऑफ कोर्स आप अच्छे तरीके से मैचेस चल रहे हैं, खेल भी रहे हैं, हर प्लेयर अपना रोल अदा कर रहा है, कोई ऐसे एरियाज जो आपको फिर भी लगता है और ज़्यादा बेटर हो सकते हैं? या ऑब्वियसली फील्डिंग में बेहतर हो सकता है। जिस तरह की हमारी फील्डिंग चल रही है पहली मैच से, आई थिंक तो वो मुझे पता है कि वो एरिया इंप्रूव कर सकते हैं हम। और या वही होता है, बैटिंग बॉलिंग में आपका दिन खराब हो सकता है, लेकिन यू नो लगातार 9 मैच से यही चल रहा है, 8 मैच से, कि आपकी फील्डिंग में हर एक मैच में कुछ ना कुछ कैच छूट रहे हैं। और यू नो ये जब क्रूशियल मैचेस होते हैं या जब टाइम होता है क्रूशियल टाइम, उस टाइम पर अगर ऐसा होता है तो जो फ्रस्ट्रेशन आती है, बॉलर को भी थोड़ी फ्रस्ट्रेशन आती है। तो यस, ये बात तो चल रही है और आज भी मुझे लग रहा है कि थोड़ी बात होगी कि फील्डिंग के बारे में हम क्या और इम्प्रूव कर सकते हैं। बट ओवरऑल मैं लगता है इतना फील्डिंग और वो सब के बाद भी अगर हमने 160 में यू नो रोक लिया तो काफ़ी पॉजिटिव है। बट यस, फील्डिंग के बारे में हम इम्प्रूव कर सकते हैं। कोई बात नहीं, अच्छे मौके आगे भी आएंगे, बट आज के लिए आज के लिए मुबारक हो और आगे के लिए ऑल द बेस्ट। थैंक यू सो मच। Akshar Patel, of course, a very happy captain, a successful captain. But again, there's a massive award with the contribution that he has played in. It's the Player of the Match award this evening. Could I request Mr. Abdullah to come forward and present Mukesh Kumar as the Player of the Match award this evening for his outstanding performance. 4 fours, 33 runs and bagging 4 wickets, an economy of 8.25. मुकेश, मुबारक हो। क्यों मैम? बहुत अच्छी गेंदबाजी, 4 विकेटें तो आपने ज़रूर ली, लेकिन आई एम श्योर कहीं ना कहीं चाहते होगे कि वो एक कैच और हो जाता, कहीं वो मिल जाता। मैं देखा था मुड़ गए थे जब वो कैच छूटा था। बट 4 अच्छी विकेटों के बारे में आप बताइए, कैसा लग रहा है? बहुत ही अच्छा लग रहा है और बॉलिंग करके मज़ा आया इस विकेट पे। जब आप आए थे गेंदबाजी करने के लिए भी तो आप पहला ओवर थोड़ा सा 2-3 गेंदें आगे पीछे कर रहे थे, असेस कर रहे थे, लेकिन वो जो सेकंड ओवर में आए तो असेसमेंट पहले से सेकंड में आपको कैसा लगा कि कहाँ डालना चाहिए और कैसे टारगेट करना चाहिए बैटर को? उसके पहले मैं जब बॉलिंग करने आया सेकंड ओवर तो उसके पहले स्टार्क और चमीरा बॉल डाल चुके थे। उनसे हम लोग मैंने बात किया और पता चला कि बॉल रुक रही है, थोड़ा फंस रही है लेंथ बॉल पे। तो मेरा कोशिश वही था कि लेंथ टू लेंथ डालूँ, उसमें मिक्स करते रहूँ मैं। जब आप स्लोअर वेरिएशन लाए या क्विकर वन भी अपने लाइन और लेंथ पे फोकस कर रहे थे, क्या आपको ये लग रहा था कि एक ही साइड ऑफ द विकेट, जैसे कई दफ़ा कप्तान कहता मैं एक साइड पे फील्ड लगाता हूँ तो एक साइड ऑफ द विकेट डाल रहे हैं, लेकिन आप बता रहे थे कि नहीं, मैं किस तरीके से बैटर को बेटर तरीके से फंसा सकता हूँ, विकेट ले सकता हूँ, ये तालमेल कैसे चल रहा था? कैप्टन से तो बात होती रहती है और उनसे बात करने के बाद से मतलब वो मुझे सजेशन कर रहे थे कि लेंथ बॉल अच्छा जा रहा है और इसमें तुम मिक्स कर सकते हो, यॉर्कर डाल सकते हो, स्लोवर डाल सकते हो, तो मैं उसमें मिक्स करके डाल रहा था। आज 4 विकेटें मिली, 5 मिल सकती थी, लेकिन अगर आपसे मैं पूछूं कि उन चारों में से आपकी फेवरेट कौन सी थी, जो आपने सोचा होगा कि आज मैं यही डालूंगा और ऐसी विकेट निकल कर आएगी? सबसे बड़ी विकेट और सबसे इम्पोर्टेंट विकेट थी मिचेल मार्श का, जो कि वो सेट हो चुके थे और उनका अब फ्री हैंड था कि वो अब बैट चलाने वाले थे। उस समय पे विकेट निकाल के देना बहुत इंपॉर्टेंट था मेरे टीम के लिए। और उसी ओवर में दूसरी विकेट भी मिली थी। यस मैम। आप कितने ज़्यादा प्लीज्ड हो अपने इस परफॉर्मेंस से थ्रू आउट द टूर्नामेंट? अभी तक सब हर मैच में आपने अच्छी गेंदबाजी करी है। इस मैच को लेकर बहुत ही एक्साइटेड था और इस परफॉर्मेंस को लेकर भी बहुत एक्साइटेड हूँ मैं, क्योंकि ऐसा परफॉर्मेंस मैं देना चाहता था, वो स्टार्टिंग में हो नहीं पा रहा था, बट इसमें हुआ
और इस चीज़ को मैं आगे कैरी फॉरवर्ड करूँगा मैम। और हम वेट करेंगे कि आप दोबारा इसी मंच पे, इसी पायदान पे एक और बार ऐसा परफॉर्मेंस लेकर आओ। Yes, ma'am. Congratulations आज Thank you, के ma'am. लिए एंड ऑल द बेस्ट आगे के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू। Mukesh Kumar, of course, with the Player of the Match award this evening. Delhi Capitals, yet again, the winner here tonight, winning by 8 wickets.